Kindly mark your attendance. We will start with the class. Okay. I'll just present the screen. I'll check whether it's visible. Okay, this is today's lecture. We are starting with lecture number 11. But before we start, I just wanted to brief you about our initial 10 lectures. So today we have quite a good number of people. Almost everybody is present except Dr. Pikle sir. Okay, so everybody is present. So instead of wasting much of time, I'll get into this particular presentation. I'll just brief you where we have started. Our first lecture was about little theory part of sky observation. Then we went into the scientists, social reformer. We talked about what to know. We talked little bit about origin of universe, not exactly, but we talked about the age of universe. Then we talked about what is observations that we exactly do when we talk about sky observation. Lecture 2 was associated with actual sky observation in theoretical way or online way. We talked about few constellations, including identifying the pole star by using some software and some sky charts. Third lecture was also similarly, we were doing some very important constellation identification, like we were talking about Orion constellation, we were talking about Cassiopeia, we were talking about Sagittarius, and so many. Fourth lecture, we talked specifically about origin of universe and associated timeline history of universe, and then we talked bit about the scientific temperament, which is very important. In case you find that I'm not audible, na, put into the chat box. I'm putting two systems on, but when it comes to the network, nothing works. So we, in worst case scenario, some teacher like Mangalam sir is present, and then okay, other like anybody else is present, you can just put directly voice message to me. Okay. So when we were talking about the lecture 5, we talked about the vastness of universe, but I also addressed binocular telescope selection because that was the last lecture of season 1. Then we went into the general introduction, that is lecture 6, general astronomical terms, constellation. We started with Andromeda. We talked about the deep sky Messier objects like a M31. Then we had some general topic where we talked about the scaling, to parsec. Then we talked about what is exactly light year, etc. Then solar system distancing also we seen in the lecture number 6. Why I'm revising? I'm revising for the reason that probably next session you will have exam. It will be simple objective type of exam, Google form format, and you will be just putting you are marking your answers and immediately you will get back your results. The results are not important, but at least keeping you on the toes to keep yourself updated what I'm covering, or at least little beyond that is important. Now, we were talking about lecture 7. We talked about Greek alphabets, meteor shower like Leonids, Geminids, few details about meteor shower and specific detail about Leonids and Geminids. We could not observe because the climatic conditions were not good. That day only we had cloudy season. Then we covered up pending details of Andromeda constellation. We went into the understanding of Stellarium software. I hope by today, when we are addressing 11th lecture, everybody is quite thorough with Stellarium software. If anybody has got any problem, kindly put into the chat box so that I can address that. Then we talked about the Messier object M32, M110. Lecture 8 was about Pisces Austrinus constellation. General topic we covered was Arecibo Observatory. Okay. Then important research done by the Arecibo Observatory. We touched upon few terminologies. Then Aquarius constellation. We had terminologies understanding of ecliptic, RA, right ascension, and declination. Then in Messier objects of the Pisces Austrinus, we talked about the Saturn Nebula, Helix Nebula, etc. Lecture number 9 was about Pegasus constellation. Great conjunction.
which happened on that 21st of December. Lecture 10, few terminologies, pending part of Pegasus, Lacerta constellation, Sun few facts, and now today is the lecture 11. Why I covered up all these things? Because after lecture 10, before taking up lecture 11, I should have taken at least one test. So we could have gone through the 5 tests. So little bit minor here and there. We'll have exam next in the next session. You can define upon the methodology, the way I should take the exam. But we can discuss that later. So this is my acknowledgement that everything is from the internet. This is today's. I was supposed to discuss question paper and revise something, but revision is over. You have some questions, you can put in the chat box. Question paper discussion, it will be objective, 4 objectives for each question. Marking system, you need not bother. It will be mostly on same fundamental, the way competitive exam asks. Details of constellation today we are going to study is Grus and Tucuna. And then details of few Messier objects, but these two constellations do not have any Messier objects. But then they have deep sky objects. Now, what is the difference? We'll go to that, and specific topic again, little briefing on Sun we will be taking. So let's get into some terminology. I normally read terminologies and explain you the concept related to terminology, constellation, deep sky objects, stars, because that is little vast form, which I know because that is just wait, somebody has posted some message. So everybody has put attendance and then we say, okay, sir will test me during the class time. We'll decide that. Okay, good question. We'll decide upon that. You don't bother, okay? This is just to update you. Suddenly, I don't want to take surprise test. First test I don't want to take as a surprise. Come to the terms and definitions. I will remember your question. I'll answer it before we leave. So there is some Baily's bead, few beads of sunlight shining between mountain peaks and through the valleys along the moon's edge in the moment before total. मतलब this is the terminology related to the eclipse and similar things. अभी जैसे कि हम बात करते हैं कि सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, लूनर इक्लिप्स में क्या होता है. टोटलिटी मतलब टोटली जो ऑब्जेक्ट है वो ना दिखना. तो ये जो टोटलिटी वाला पार्ट है, इस दरमियान हम जहां से भी रिफ्लेक्टेड लाइट मिलती है, अगर वो एक ज्वेल स्टोन की तरह या सम मोती की तरह चमकता हुआ दिखे, जैसे जब हम रिंग बोलते हैं ना, तो वो रिंग जो दिखती है एनुलरिटी के टाइम पे, एनुलर सोलर इक्लिप्स में, तो उसमें भी आपको एक रिंग की तरह एक ऐसा ज्वेल चमकता हुआ दिखेगा. So all such type of hotspots are basically Bailey bits. Then I'm putting these terminologies in alphabetic way. So now we go to the next part, Barlow lens. Barlow lens क्या है? Lens that placed into the focusing tube to effectively double or triple the telescope's focal length and enter the magnification of any eyepiece used with it. अभी इसके लिए ये मेरी टोटली गलती है. मैं आपको टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन करता हूँ. इट इज समथिंग लाइक एक्सप्लेनिंग सम थ्योरी, पर प्रैक्टिकली ये चीज आपको दिखाता नहीं. अभी इसमें मैं बोल रहा हूँ मेरी गलती है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स पार्टली फ्रॉम माय साइड, पार्टली फ्रॉम द सिचुएशन साइड, एंड लिटिल बिट कंट्रीब्यूशन कम फ्रॉम योर एंड, बिकॉज आपके पास टेलीस्कोप नहीं है. मेरे पास टेलीस्कोप है, तो आप आ नहीं पा रहे हो पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से. तो आज ही मेरा एक सीनियर जो अपने स्टूडेंट है उनसे बात हो रहा था, तो ही वॉज क्वाइट मच इंटरेस्टेड. माहिम में रहते फिर भी ही इज मच इंटरेस्टेड कि आप सर आपके यहाँ आना है. तो इसे भी मैं मटेरियलाइज करना चाहता हूँ. आई बी वेरी हैप्पी टू कॉल यू ऑल, बट ये पेंडेमिक सिचुएशन का क्या करें मुझे समझ में नहीं आ रहा है. एटलीस्ट एक बार टेलीस्कोप से आप देख पाते. तो पेंडेमिक सिचुएशन से भी वर्स्ट सिचुएशन है कि आजकल क्लाइमेट में कुछ गड़बड़ी है. तो आपके यहाँ बारिश हो रही है मुंबई में, और हमारे यहाँ कंप्लीट क्लाउड कवर है. देन ऑल्सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हैव सम सेशन विदाउट क्रिएटिंग एनी issue pertaining to pandemic or some other related things. सो बार्लो लेंस के बारे में यही है कि जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप में जैसे मेन मिरर है या मेन लेंस है, और जो रिफ्लेक्ट करके जो आपके आंख में प्रतिमा यानी इमेज आती है, उस इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए या फोकस करने के लिए एक ट्यूब रहती है आईपीस नाम की. तो उस आईपीस में अगर हम मैग्निफिकेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो जो लेंस डाली जाती है उसको बार्लो लेंस बोलते हैं. डबल लेंस होती है बेसिकली, रिफ्लेक्टर रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप जैसे. अब ये सारी चीजें जब आप आएंगे तो मैं फुर्सत से आपको समझाऊंगा.
मुझे भी बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, पर फिर भी आपके सवाल का जवाब तो मैं दे ही पाऊंगा। Now come to the black hole. You all know what is it. So we will not get into it. It's a point of singularity having very high density and very high gravitational influence, so that even light is not able to escape. लाइट का वेलोसिटी है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, फिर भी वो एस्केप नहीं कर पाती, जबकि पृथ्वी के ऊपर से किसी भी चीज को एस्केप करके जाना है तो तकरीबन 16-17 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड काफी है। तो ये छोटे बच्चों को, जो एक 6, 7, 8, 9, 10 के हैं, उनको शायद समझे नहीं, बट जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस टॉपिक में, उनको ये तो करना है कि दरमियान आपको लेक्चर के दरमियान आपको नोटबुक पेन लेके बैठना है। जो टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आई वो फटाफट, जब बॉस डिक्टेट करता है ना तो पीए कैसे लिख के लेती है, वैसे वो लिख देनी है, और फिर उस टर्म को याद रखना है, उसके रिलेटेड सवाल लिखने हैं, और उस लिस्ट को आपको मुझे भेजना है, या जब मिलेंगे तब हम 2-3 घंटा डिस्कशन करेंगे तो आप अपने सवाल पूछ सकते। ब्लू मून और विंटर मून और सम ब्लैक मून और सम अदर मून, इसका मैंने पूरा आर्टिकल ही आपको भेज दिया था। और वो आर्टिकल लिखने की प्रेरणा मुझे एक टाइम्स ऑफ इंडिया में या किसी इन हाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई लेडी है, मुझे कांटेक्ट करते, तो उन्होंने पूछा कि सर आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है विंटर मून को। तो मैंने खुद ढूंढा और फिर उनको भी आर्टिकल भेजा और आपको भी वो भेजा। आजकल इतने दिन सेलिब्रेट होते हैं, इतने इवेंट्स सेलिब्रेट होते हैं कि इसकी लिस्टिंग रखना थोड़ा मुश्किल है। आप लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा तकलीफ का काम है, क्योंकि स्कूल का भी याद रखना है या हॉबी क्लास का भी याद रखना है, फिर और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी याद रखना है। बट देन टुडेज डेट इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। उस ये सब करने के बाद आपको आगे के दिन बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ट्रेडिशनली ब्लू मून मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको एक ही महीने में, एक कैलेंडर महीने में 2 मून दिखे, फुल मून। दिस इज ऑल आर इवेंट्स आर रिलेटेड टू ब्लू मून, फुल मून। इसलिए हम लोग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं प्लेन इंग्लिश में कि वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू मून इज अ रेयर इवेंट, कभी तो होता है, तो इसलिए हम उसको उस तरीके से यूज करते हैं। सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट, अगर हम पूरे आसमान को अगर एक ग्रिड में कन्वर्ट करें तो उसका जो एक्स वाई मिलेगा हमको किसी भी तरीके से कोई पॉइंट लोकेट करने के लिए, उसको हम बोलेंगे सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट। उसमें हम अभी ज्यादा जाएंगे। सर्कमपोलर डिनोट्स एन ऑब्जेक्ट नियर द सेलेस्टियल पोल that never dips below the horizon as earth rotate and thus does not rise or set। मतलब अगर हम 19 डिग्री पे है, मुंबई वाले लोग या औरंगाबाद वाले लोग एक 19 और 18-17 डिग्री के आसपास हम लोग है लैटिट्यूड में, तो जो नॉर्थ पोल के आसपास उस लैटिट्यूड का सर्कल बनेगा, वहां के ऑब्जेक्ट्स हमको कभी भी सेट होते हुए नहीं दिखेंगे। सिर्फ सूरज आने के कारण वो हमको दिखते नहीं, बट वो सेट कभी भी नहीं होते हमारे लिए। यही यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है, और उसको बोला जाता है सरकमपोला। अभी छोटे बच्चों के लिए सारा समझना थोड़ा मुश्किल है, तो आप मुझे बड़े दिल से माफ कर दीजिए। कोलिमिनेशन, aligning the optical elements of telescope so that they all point in the proper direction. Most reflectors and compound telescope require occasional collimation in order to produce the best possible images। ये अलाइनिंग, अब ये अलाइनिंग वगैरह जो है, या फाइंडर नाम की एक चीज होती है, ये सारी चीजें जो बड़े टेलीस्कोप होते हैं उनको प्रॉपर अलाइनमेंट की जरूरत होती है, और उसको करने का काम जो ऑपरेटर है उसका है। हम जिस लेवल के टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं, मतलब मेरे लेवल पे 5 इंच, 6 इंच, 8 इंच, उसमें बहुत सारी चीजें बनी बनाई रहती है, बट फिर भी फाइंडर टू आपका जो मेन ट्यूब है इसका अलाइनमेंट आईपीस के साथ करना पड़ता है। इसमें काफी वक्त जाता है, बट एक बार अच्छा अलाइनमेंट हो गया तो कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कितना भी डिस्टेंट हो, उसको ढूंढना काफी हद तक आसान हो जाता है। अब ये सारी चीजें हवा में, जैसे मतलब बोलाचीच कडी आणि बोलाचंच ताक आणि बोलाचंच भात, असा काहीतरी मराठी म्हण आहे। तो दैट टाइप ऑफ, मैं बोले जा रहा हूँ और आप सिर्फ महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट इज बिट डिफिकल्ट, डोंट बॉदर। हम 10 लेक्चर खत्म कर चुके हैं और 40 लेक्चर बाकी है, और 40 लेक्चर में अगले 2-4 लेक्चर के बाद आपका एक विजिट मेरे यहाँ जरूर होगा। Comet, we talked about during Geminide and Leonids meteor shower. We talked about comets, we talked about asteroids. A comet is a dirty snowball of ice, rocky debris, typically few miles across. It orbits the sun
इन लॉन्ग एलिप्स व्हेन क्लोज टू सन। उसकी गर्मी के कारण इसका बर्फ जो है पिघलने पर लगता है, इवेपोरेट होने लगता है, और फिर न्यूक्लियस जो है एक फॉर्म करता है, कोमा, क्लाउड ऑफ गैस, एंड एक छोटी सी पूंछ भी बना लेता है। एंड नेम ऑफ द डिस्कवरर जो होता है, नॉर्मली नेम ऑफ द डिस्कवरर उसको एक नाम दे देता है, मेक रिटर्न विजिट्स। ये चक्कर मारते हैं तो मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद चक्कर मारेंगे। ऐसे कुछ महीनों से लेके, कुछ साल से लेके थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का भी पीरियड रखने वाले कॉमेट्स होते हैं। जैसे हैलेस कॉमेट हम बोलते हैं, तकरीबन 75-76 ईयर का उसका पीरियड है। 1986 आई थिंक में वो देखा गया था, और उसके पहले भी 1911 में देखा गया था, ऐसा कुछ। तो उससे वो बात प्रूव हो गई। हैले नाम के साइंटिस्ट ने उसको ढूंढा, उसको हैलेस कॉमेट बोला जाता है। हमने ये भी देखा कि टेम्पल टटल नाम का जो कॉमेट है उसकी वजह से हमको एक मिटियोर शॉवर मिलता। आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट जेमिनाइड, आई थिंक, और ल्यूनाइड। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंड टेलीस्कोप टर्मिनोलॉजी। टेलीस्कोप इज अ मिरर इन अ बैग, मतलब रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्ट करता है, लाइट परावर्तित करता है। लेंस इन फ्रंट। द मोस्ट पॉपुलर डिजाइन आर स्मिथ्स कैटेगरी। ये सब हाई फाई कंपाउंड करने वाले, मतलब बहुत सारे प्रिंसिपल को एक साथ में जुटा के अच्छी इमेज देने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है, उस चीज में आता है कंपाउंड टेलीस्कोप। आपको यहाँ स्मिथ्स कैसेग्रियन नाम का टेलीस्कोप का नाम दिया गया है। देन मार्क्सुताव कैसेग्रियन टेलीस्कोप भी है, नॉर्मली उसको मार्क बोला जाता है। कंजक्शन जो टर्म है उसके बारे में हमने पढ़ा, एलिमिनेशन के बारे में भी हमने पढ़ा। नहीं, कल्मिनेशन, ओके। द मोमेंट व्हेन द celestial object crosses the meridian, thus at its highest above the horizon, मतलब हॉराइजन से ज्यादा ऊपर, या हम बोल सकते हैं जेनिथ के आसपास। ओके। डार्क एडेप्टेशन ये बहुत जरूरी चीज है ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। मैं हमेशा ही, आप ऑब्जर्वेशन के लिए आऊंगा तो बोलूंगा कि आपको एक 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट आंखें बंद करके बैठना है, ताकि आपके जो आई का ओपनिंग है जहां से लाइट अंदर जाके रेटिना पे गिरती है, वो ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो। बट सडनली अगर उसके ऊपर लाइट गिरेगी तो क्या होगा, फिर से वो बंद हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं बिल्ली की आंख की जो पुतली होती है वो छोटी बड़ी होती है। सेम इज एप्लीकेबल टू सम स्नेक्स विच आर नॉक्टर्नल। नॉक्टर मतलब जो रात में अपने खाने को ढूंढते रहते हैं, या जो निशाचर टाइप के जीव होते हैं, उनके आंखों में ये प्रोविजन होती है कि उनकी आंख की पुतली बड़ी छोटी हो सकती है, सो दे कैन एडजस्ट लाइट फॉलिंग ऑन देयर रेटिना। हमारे में ये सर्कुलर है, कुछ लोगों में ये वर्टिकल आई पीपील है, तो कुछ लोगों में, मतलब जीवों में, प्राणियों में। तो उस तरीके से नाइट या डार्क एडेप्टेशन के लिए हमें एक 5-7 मिनट का टाइम सफिशिएंट है। बट फिर भी अगर बहुत अच्छे से करना है फुल डार्क एडेप्टेशन, तो हमको आधा घंटा अंधेरे में रहना पड़ेगा। तो फिर अंधेरे की चीजें हमको थोड़ी हल्की फुल्की दिखने लगती है। दिस इज कॉल्ड डार्क एडेप्टेशन। इट कैन बी ruined बाय मोमेंटरी ग्लांस एट ब्राइट लाइट, जो मैंने आपको बताया। सॉरी, आज मैंने टर्मिनोलॉजी पे ऑलमोस्ट एक 10 मिनट वेस्ट किए। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट, आपको ये अच्छे से दिख रहा है क्या? हमने अब तक एंड्रोमेडा कॉन्स्टिलेशन देखी, देन वी टॉक्ड अबाउट Pisces Austrinus constellation, Aquarius, then we talked about Pegasus constellation, then we talked about Lacerta constellation. Now we are going today to cover these two constellations. The names are Grus and Tutul. आप जैसे देख ही सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्काई में नीचे डब्लू दिख रहा है आप सब लोग को। तो मतलब अगर ये नीचे वाला पोर्शन डब्लू है, तो ये जो टिकुना एंड ग्रस जो है वो कॉन्स्टिलेशन कौन सी दिशा में है? वो है साउथ की दिशा में। तो साउथ की दिशा में है, और मैं बोलूंगा कोई दिल्ली में बैठा है, कोई कश्मीर में बैठा है, कोई मॉस्को में बैठा है, कोई ग्रीनलैंड में है, कोई नॉर्थ पोल पे बैठा है, तो क्या ये दिखेंगी? नहीं दिखेंगी। बट हम कहाँ हैं? हम 19 डिग्री पे हैं। हम 90 डिग्री पे नहीं है, 90 पे नहीं है, हम 1919 पे हैं। तो हमारे लिए ये विजिबल है। जैसे मैं मेरे घर के टेरेस से हमेशा ग्रस और उसका अल्फा जो है, अल्फा ग्रुइस, वो मुझे हमेशा दिखता है, नाम है अल्ने। आज हम इसी कॉन्स्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर आपके डाउट्स लेंगे।
तो ये कॉन्स्टिलेशन के बारे में जो मैंने यहाँ आप लोगों के लिए लिखा है उसको पढ़ लीजिए ताकि हम आगे जा सके। यहाँ मैंने लिखा है कि ग्रस कॉन्स्टिलेशन is the southern constellation of the sky. Its name comes from the Latin, that is crane, a type of bird. क्रेन म्हणजे बगळा. बगळा दिसतो ना आपल्याला आकाशात बरेच बगळे दिसतात, ते त्यांच्याकडचं एक नाव आहे लॅटिन आणि इट इज वन ऑफ द 12 कॉन्स्टिलेशन. इट इज कन्सिव्ड बाय द पेट्रस प्लान्सियस. आता हे लक्षात घ्या की ये सॉरी मैं मराठी में चलूंगा. ये ध्यान रखिए आप कि मैं कुछ साइंटिस्ट के नाम बताता हूँ, कुछ पीरियड बताता हूँ. इस पीरियड में भी ये कॉन्स्टिलेशन का नाम और अस्तित्व मौजूद था और उस नाम को हम डालते थे किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिलेशन. किसी ने अपना लॉगबुक बनाया, किसी ने अपनी किताब लिखी, किसी ने अपना कोई बड़ा डाइजेस्ट बनाया, तो वो साइंटिस्ट को उसका कंट्रीब्यूशन दिया जाता है कि इट वाज एग्जिस्टिंग एज पर आवर नॉलेज डोमेन बाय दैट पर्टिकुलर सिविलाइजेशन और इंडिविजुअल. तो सर जो आप हर व्यक्ति बोलिए अरे एक बार बोलिए आप कॉन्स्टिलेशन ठीक से दिखाओगे क्या? कौन बोल रहे हैं? गुरवेश। Who's this? गुरवेश। गुरुवेश. धीरे धीरे दिखेगा. अभी तो कहानी शुरू हुई है. इतना रेस्टलेस होना नहीं बिल्कुल है आपको. ओके. और सर लोग को मैंने माइक ऑन करने बोला है अगर आवाज ना आए. आपको इस तरीके से नहीं करना. करना भी है तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है. दिस इज समथिंग वी कॉल डिसिप्लिन. तो इसमें इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए. मुझे मालूम है आप थोड़े छोटे हो तो क्यूरियोसिटी ज्यादा है, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड. ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं पढ़े जा रहा हूँ. प्रीवियसली कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ नेबरिंग कॉन्स्टिलेशन पाइसेस ऑस्ट्रिनस. आपने मुझे हमेशा देखा होगा कि मैं कॉन्स्टिलेशन दिखाते हुआ उसके आसपास क्या है वो भी दिखाता. तो जब मैं ये बता रहा हूँ तो आपको ये पक्का याद रखना है कि जब हम बात करेंगे आसमान में किसी को दिखाने की या हम देखेंगे ग्रस यानी क्रेन, मतलब मराठी में बगड़ा, और बक, बग भी बोलते हैं ना मराठी में, ब क ऐसे बोला जाता है. तो ये जब हम दिखाएंगे तो हमको ये जरूर दे समझाना है लोगों को या हमको खुद को समझना है कि इसके आसपास पाइसेस ऑस्ट्रिनस नाम का कॉन्स्टिलेशन होगा. क्यों होगा? क्योंकि यहाँ हमने देखा था. देखिए ग्रस के बगल में पाइसेस ऑस्ट्रिनस है कि नहीं, तो मतलब पहले ये उसका हिस्सा माना जाता था. तो धीरे धीरे रिफाइनमेंट मतलब धीरे धीरे चेंज आने लगा और आज एक मौजूद है 88 कॉन्स्टिलेशन. जो 88 कॉन्स्टिलेशन हम मानते हैं कि भाई यही इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कॉन्स्टिलेशन है. तो बाद में कॉन्स्टिलेशन ग्रस के आसपास पाहो है, फेनिक्स है, टुकुना है और ये सारे बर्ड. ओके. मतलब फिनिक्स जैसे है वो जटायु है. टुकुना जो है वो एक अमेरिकन बर्ड है जिसकी चोंच बड़ी बड़ी रहती है. पाहो मतलब मयूर, मयूर मतलब मोर. तो ये सारे पक्षीगण हैं. तो इनको साउथ साइड में दिखने वाले पक्षी यानी सदर्न बर्ड के नाम से जाना है. अभी गुरुवेश की रिक्वेस्ट, भाई मेरे ये है वो कॉन्स्टिलेशन. ओके. इस कॉन्स्टिलेशन में आप बोलेंगे सर अल्फा बीटा गामा वो ग्रीक अल्फाबेट तो दिख नहीं रहे, कुछ 1 2 3 4 है. ये फ्लैम्स्टीड मेथड है. इसमें नामकरण जो है वो 1 2 3 सिस्टम से होता है. आपको सिर्फ किस तरीके से वो बगड़ा यानी बग यानी क्रेन यानी ग्रस दिखता है वो दिखाने की यहाँ मैंने कोशिश की है. मैंने मतलब इंटरनेट से डाउनलोडेड कोशिश. अभी हम थोड़ा आगे चले. गुरुवेश आगे चले हम लोग. चैट बॉक्स में लिखो जरा. यस सर। अब तुम इसके बाद माइक ऑन किया तो मैं तुमको क्लास से निकाल दूंगा. माइक ऑन नहीं करना है, चैट बॉक्स में लिखना. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दिस इज सम स्केच टाइप ऑफ थिंग, जबकि इसमें भी आप देख सकते हैं अच्छे से कि इसमें आपको ग्रस कॉन्स्टिलेशन दिखाई गई है और उसके बाद इस कॉन्स्टिलेशन में आपको एक मिनट मंगलम सर माइक ऑन करिए. आई एम ऑडिबल और नॉट, क्योंकि मेरे Yes, sir, दूसरे you are स्क्रीन से सब. audible, sir. Audible, sir. ओके. Screen भी दिख रही है ओके sir. थैंक यू मंगलम. तो यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था
कि यहाँ ये ग्रस है, उसके इस तरह उस इंदस है, नीचे की तरफ फेनिक्स है। तो ये सारी चीजें हम अगले चीज में हमको अच्छे से दिखेंगी। तो क्या आपको ग्रस दिख रहा है? फिर जैसे मैं बोल रहा था, फेनिक्स दिख रहा है, टुकुना दिख रहा है, जो पढ़ने वाले हैं हम आगे। ये एक बर्ड है, देखिए, ये एक ग्रस यानी बक है। ये माइक्रोस्कोपियम है। आइसिस एस्ट्रिनस का ये बड़ा तारा दिख रहा है आपको, और इसमें आपको दिखेगा ये इंदस। ये सब सदर्न कॉन्स्टिलेशन। तो अगर ये आपको अच्छे से दिख रहे हैं तो हमको चित्र देखने के बाद अभी आगे जाना है। पर आगे जाने के पहले, और ये जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का ये जो चार्ट है, इसमें मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा और इसमें थोड़ा वक्त लूंगा आप सबका। ओके। ये जो ग्रस कॉन्स्टिलेशन है, इसको क्रेन बोला जाता है, मतलब क्रेन की तरह ये डेसिग्नेटेड है, ऐसा मैंने आपको बताया। अभी हम चल रहे, अगर आपको दिखे नहीं या आपको आवाज सुनाई न दे तो प्लीज मेरे चैट बॉक्स में लिखिए, मैं चैट बॉक्स खोल के बैठा हूँ, ताकि आपको मैं समझ सकूँ। नाउ विल कम टू इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन का जो एरिया है, 366 स्क्वायर डिग्री है। 45th साइज की कॉन्स्टिलेशन है आउट ऑफ 88। बायर फ्लैम्स्टीड मेथड के हिसाब से जाएंगे तो 28 तारे हैं। बट अगर हम मेन तारों की बात करें जो दिखते हैं, तो आपको यहाँ पिंधास आप गिनोगे तो आपको समझ में आएगा, नॉट मोर देन 8-9। तो ये 8 तारे ही ब्राइट तारे हैं। सबसे ब्राइट तारा जो यहाँ आपको अल्फा अल्नेर के फॉर्म में दिखाया है, उसकी मैग्नीट्यूड तकरीबन 3 है। ओके। और ये जो आपको दिख रहा है, इसमें आपको कहीं भी एम नाम का डेसिग्नेशन नहीं दिख रहा है, मतलब मेसियर ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन में है नहीं। तो मेसियर ऑब्जेक्ट इस कॉन्स्टिलेशन में है नहीं, तो हमको और कुछ देखने मिलेगा क्या? यस। मेसियर ऑब्जेक्ट्स जो मेसियर्स को दिखे, मेसियर को, चार्ल्स मेसियर को, वो उसने लिस्ट आउट किए 110। बट आजकल के नए इक्विपमेंट के मदद से बहुत सारे जो है वो डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैं आप सब लोगों को बड़ा सा थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मेरा एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, बट ऑफिस के काम के चलते और बाकी सब मेरे कमिटमेंट के चलते मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पाता था। पर आपके कारण आपको 1 घंटा लेक्चर देने के लिए मुझे एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 घंटा इसके ऊपर बिताना पड़ता है। और उसी के चलते मुझे इसके रिलेटेड टेक्निकल डिटेल्स की डेप्थ मेरी बढ़ने लगी है। मेरी स्टोरीज, कभी इस पर्टिकुलर ग्रस के बारे में कोई स्टोरी नहीं है, तो गुना के बारे में भी कोई स्टोरीज नहीं है माइथोलॉजी में, ज्यादा से मैंने कोशिश की तो। बट टेक्निकल कंटेंट बहुत है। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट जो मेरे टेलीस्कोप से कभी दिखेंगे नहीं, आपके भी नहीं दिखेंगे, बट जो दुनिया भर के साइंटिस्ट और कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशन लेते हैं, वो चित्र मुझे आपको पढ़ाने के चक्कर में देखने पड़ते हैं, तो बड़ा आनंद मिलता है। नाउ लेट्स गो टू द डिटेलिंग ऑफ द ग्रस कॉन्स्टिलेशन। ग्रस इज अ कॉन्स्टिलेशन इन सदर्न स्काई, ये हमने पढ़ा। फिर ब्राइटेस्ट स्टार जो अल्फा ग्रुइस है, अब ये जो है उसकी षष्टि है, विभक्ति नाम की एक चीज होती है मराठी हिंदी में, तो अल्फा ग्रुइस बोला जाएगा, जो अल्नेर है। 1.7 मैग्नीट्यूड, मैंने गलती से आपको 3 मैग्नीट्यूड का बताया। उसके पास 3 मैग्नीट्यूड के आसपास के 3-4 तारे हैं, जबकि अल्नेर का मैग्नीट्यूड 1.7 है। ब्लू स्टार है। और बीटा जो है उसका नाम है ग्रुइड, और वो रेड जायंट वेरिएबल स्टार है। मैग्नीट्यूड तकरीबन 2.3 के आसपास है। और तीसरा जो है वो है अल्धना, एंड दैट इज ग्यामा ग्रुइस, दैट इज gamma of the Grus constellation. The stars that corresponds to Grus are generally too far of the south to be seen from the any of the northern countries, including China की बात करो, रशिया की बात करो, यूरोपियन कंट्रीज की बात करो। तो नॉर्मली इससे रिलेटेड यूरोप, जहां से बहुत सारी, नहीं बोला तो भी, एक्सपीडिशंस की शुरुआत हुई, वहां कोई स्टोरीज, या अरेबियंस की बात करें तो वहां पे कोई भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज इनसे एसोसिएटेड नहीं। देन ग्रस हैज सेवरल ब्राइट स्टार्स। उसमें जो ब्राइट स्टार 3 की हम बात कर रहे थे, अल्फा, बीटा और ग्यामा की, इसका जो अल्फा है, इट्स अराउंड 101 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ। अभी आप बोलोगे ये सबके डिस्टेंसेस मैं क्यों बताता हूँ, कि कभी कभी इंटरेस्टिंग चीजें इससे सामने आ जाती है। कि इसी चीज में हम एक स्टार सिस्टम देखने वाले हैं, जिसकी एक प्लेनेटरी सिस्टम देखने वाले,
और ये प्लानिटरी सिस्टम इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट टू द अर्थ और डिस्कवर्ड ऑन द फर्स्ट बेसिस। तो ये सब चीज समझने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल आपको जानना होगा। एंड वी वर टॉकिंग अबाउट अल्फा ग्रुस ग्रुइस एंड दैट इज अल्नेर व्हिच इज 1.7 मैग एंड 101 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। ट्रेडिशनली अल्नेर का मतलब होता है ब्राइट वन। ऑब्वियसली इस कॉन्स्टिलेशन में ये सबसे ब्राइट है, तो मतलब उसका नाम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम अरेबियन सिविलाइजेशन ने इसके में क्या देखा, तो इन्होंने इस स्टार को फिश के टेल में देखा। अभी ग्रस तभी जो है वो पाइसेस्टर्नस का हिस्सा माना जाता है। अल्नेर इज अराउंड 380 टाइम्स more luminous and has 3 times diameter of the sun। अभी आप समझ सकते हो कि ये जो चीज हम बोल रहे हैं ये महसूस नहीं होता जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। 380 टाइम ल्यूमिनियस है, जबकि वहां दिखने में इट इज लिटिल क्लोजर टू द होराइजन। तो तकलीफ होती है हम लोगों को। और जबकि 3 टाइम्स का सूरज से बड़ा डायमीटर, और जबकि सूरज है हमसे 500 लाइट सेकंड की दूरी पे, और ये अल्नेर जो है वो हमसे 101 लाइट ईयर्स की दूरी पे। अब एक्सट्रीम छोटे बच्चों को तो नहीं, बट बड़े लोगों को समझ सकता है कि हाउ ल्यूमिनोसिटी और इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइटनेस विजिबल ऑफ स्पेसिफिक स्काई ऑब्जेक्ट इज वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। सिर्फ डिस्टेंस का आपको थोड़ा अंदाजा आना मुश्किल है, क्योंकि आपके दिमाग में अभी भी 1 लाइट ईयर मतलब कितना, ये फिट नहीं हुआ है। तो ये फिट होने के लिए आपको एक समझना पड़ेगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻13। ओके, 10⁻13 किलोमीटर्स। 1 लाख लाइट ईयर मतलब 1 × 10⁻18 किलोमीटर्स ऐसे। तो ये सब चीज मैं जो बोल रहा हूँ उसको 1 to 1 मत लीजिए। कभी कभी बोलने के बहाव में मैं शायद गलत भी बोल सकता हूँ, क्योंकि जब कैलकुलेशन करूंगा तो सही इंफॉर्मेशन आएगी, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द बीटा ग्रोइस, द प्रॉपर नेम इज TIAKI, मतलब टियाकी। ओके, द रेड जायंट है, उसका एक अपना स्पेक्ट्रल क्लास है M5 III। डायमीटर ऑफ पॉइंट एट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट प्लेस्ड इन अ सोलर सिस्टम। आप समझ रहे हैं, पॉइंट एट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब पृथ्वी तक पहुंचना। ओके, तो पॉइंट एट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है अगर उसको सन के यहाँ सोलर सिस्टम में डाला जाए टू द ऑर्बिट ऑफ वीनस तक वो पहुंचे। लोकेटेड अराउंड 170 लाइट ईयर्स की दूरी पे है पृथ्वी से, और मिनिमम से मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वेरिएशन जो है उसका 2 to 2.3 होता है। ओके, imaginary light drawn from the great square of Pegasus through the formal heart will lead to the Alnairs and Beta। मतलब कभी कभी आपके सामने जो ये चित्र दिखा रहा हूं मैं ग्रस कॉन्स्टिलेशन का, अगर आप इस चीज को जैसे उन्होंने बताया कि अगर आप फॉर्मल हॉट से लेके एक स्ट्रेट लाइन ग्रेट स्क्वायर ऑफ पेगासस से ड्रॉ करोगे तो अल्नेर और बीटा ग्रुइस से पास होगा। इसी तरीके से जब हम ओरायन कॉन्स्टिलेशन की बात करते हैं, तो ओरायन कॉन्स्टिलेशन में जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन एसोसिएटेड है जिसको हम सीरियस बोलते हैं, मतलब सीरियस कॉन्स्टिलेशन, सीरियस नाम का तारा, तो वहां से अगर हमने ये निकाला, लाइन निकाला, तो वो जो अलनीता अलनीला पिंडा है उन तीनों से पास होता है। इसलिए वो स्टोरी है व्यात की और हिरन। तो ऐसी काफी स्टोरीज है, जैसे कि अगर आप सीरियस से भी एक बाण निकालोगे तो वो नीचे कॉनोपस तक टच होता है। कॉनोपस इज अगस्ती विच इज लोकेटेड इन द करीना कॉन्स्टिलेशन, नौका तल बोलते हैं उसको, और वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। अभी हम जाते हैं डीप। आई होप इट इज यू आर कंफर्टेबल, क्योंकि अभी हमने इधर काफी कुछ पढ़ लिया। अभी हम चलते हैं इधर। आपको दिखेगा, सॉरी एक चीज मैं बताना ही भूल गया, मैंने उसको ढूंढ लिया। आप देख रहे हैं डेल्टा 2 और डेल्टा 1 कैसे एक के ऊपर एक दिखाए हैं। तो ये इसलिए दिखाए हैं क्योंकि ये डबल स्टार है, और ये जो डेल्टा ग्रोइस है ये डबल है, और उसके दो कंपोनेंट है डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 एंड आर सेपरेटेड बाय 45 आर्क सेकेंड। 45 आर्क सेकेंड। ओके, कितने आर्क सेकेंड एक मिनट बनाएंगे, तो आपके 60 आर्क सेकेंड एक मिनट बने। कितने मिनट एक डिग्री बनाएंगे, तो भैया आपके 60 आर्क मिनट आपका एक डिग्री बनाएंगे। तो आपको याद होगा कि कितने डिग्री का एक्चुअल
कंपोनेंट सेपरेशन था ग्रेट कंजंक्शन के टाइम पे जुपिटर और सैटर्न में, तो इट वाज 0.1 डिग्री। तो मैंने फिर हिसाब किताब करके आपको समझाया था कि चांद के फुल चांद की हम बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1/5 ऑफ द डायमेट्रिकल कटिंग ऑफ द मून इन अ 5 पोर्शन, उसमें से एक हमको उठाना था। तो इस तरीके से यहाँ जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 है वो 0.45 आर्क सेकंड की दूरी पे है। इसको आप आराम से देख सकते हो टेलीस्कोप। डीप स्काई ऑब्जेक्ट में जाते हैं जो यहाँ आपको दिखाई नहीं दिए ज्यादा क्योंकि बहुत ही छोटा कॉन्स्टिलेशन है, तो हम सीधा उनके ऑब्जेक्ट डिटेलिंग पे जाते हैं। अभी आप ऐसा मत सोचिए कि ये सब मैंने देखा है, मैंने ये कभी नहीं देखा। जो आपके सामने है वो है इंडेक्स कैटलॉग का एटम नंबर 5148। इट इज अ प्लानिटरी नेबुला। जब अभी कभी भी आप ऐसी चीज देखते हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ प्लानिटरी नेबुला अराउंड 1 डिग्री वेस्ट ऑफ द लैम्बडा ग्रेस। अभी ये जो लैम्बडा ग्रेस है उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं लैम्बडा को बड़ा कर रहा हूँ, इसके 1 डिग्री वेस्ट में वो पर्टिकुलर IC5148 है। अभी बार बार हम आगे पीछे नहीं करेंगे, मुझे मालूम नहीं आपको ठीक से दिख रहा है कि नहीं। तो ये जो आपको दिख रहा है अराउंड 3000 लाइट ईयर डिस्टेंट है। इट इज एक्सपांडिंग। ये प्लेनेटरी नेबुलास वगैरह जो है वो एक्सपांड होते रहते हैं। इट इज एक्सपांडिंग एट द किलोमीटर ऑफ 50 किलोमीटर पर सेकेंड, वन ऑफ द फास्टेस्ट रेट ऑफ एक्सपांशन इन मोस्ट ऑफ द नोन प्लेनेटरी नेबुलास। तो ये है IC5148। नॉर्थ ईस्ट ऑफ द थेटा ग्रस हमारे को एक 4 गैलेक्सीज का ग्रुप दिखता है जिसको बोला जाता है ग्रस क्वार्टेट। तो ग्रस क्वार्टेट को भी हम देखेंगे। ये 4 गैलेक्सी है, इसमें नाम भी देखेंगे। NGC 7599, NGC 7590, NGC 7582 और NGC, इधर गुम हो गए भाई साहब, चौथा वाला, हाँ, NGC 7552। ओके, तो ये जो 4 गैलेक्सीज हमको ग्रस कॉन्स्टिलेशन में दिखती है उसका नाम है ग्रस क्वार्टेट। ओके, अभी ये सब चीज के बारे में काफी डिटेलिंग आपको मिलेगा, और टू बी फ्रैंक ना, ये सारी चीजें हम हमारे छोटे से 4-5 इंच वाले टेलीस्कोप से देख नहीं पाएंगे। हम इसमें ज्यादा वक्त नहीं बिताएंगे, सिर्फ याद रखिए कि इस तरीके की चीजें होती। Now we'll go to the one of the very important स्टार सिस्टम जिसका नाम है ग्लीसा 832। ओके, अभी ग्लीसा 832 रेड ड्वार्फ है, बट अगर आप डिस्कवरी या नेशनल जियोग्राफी पे इस तरीके के प्रोग्राम्स पहले से, मतलब अभी छोटे बच्चों की बात नहीं हो रही है जो हाल ही में पैदा हुए हैं, ओके, 10 साल 15 साल पहले, ये बात हो रही है जो थोड़े मेरे उम्र के हैं। अगर आप पुराने जमाने से इस तरीके की चीजें सुन रहे होते तो आप हमेशा सुनते थे कि दिस ग्लीसा इज, मतलब बहुत ही फेवरेट था सबका। इसलिए था कि जो ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ह्यूमन एक्टिविटी या एलियन एक्टिविटी ढूंढने के प्रोजेक्ट्स थे, जैसे ओक्समा 1960 में चला, फिर सेटी चला, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, इन सब में जब भी नया स्टार सिस्टम को प्लेनेट ढूंढा गया तो सब लोग ऐसा सोचते थे कि वहां से अभी कोई एलियन या कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमारी तरफ आने की कोशिश करेगी, आएगी, या हमसे कांटेक्ट करेगी। तो इस तरीके के स्टार्स और सिमिलर टू द अर्थ प्लैनेट ढूंढने की जो जद्दोजहद थी, इसमें ये जो ग्लीसा है ये एक इम्पोर्टेंट नाम माना जाता है। तो ग्लीसा 832 is a red dwarf with a stellar classification M2V, lying at a distance of approximately 16 light years from our solar system. Apparent magnitude is approximately 8.66, एब्सोल्यूट 10.19 है, उसमें हमको जाने की जरूरत नहीं। इट्स अबाउट 9.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। हम जब सोलर यूनिवर्स की बात करते हैं तो तकरीबन 13.8 बिलियन की बात करते हैं, ये 9.5, मतलब ये काफी बड़ा है। इसकी रेडियस इज हाफ द रेडियस एंड मास ऑफ द सन। स्टार एस्टिमेटेड रोटेशन पीरियड ऑफ अराउंड 46 days. Gliese 832 is notable for being the closest star to Earth in a Grus constellation and for hosting 2 known exoplanets,
Jupiter like ELISA 832b discovered in star's orbit in 2008, and in 2014 another planet was detected orbiting at a very close to right distance to its parent star, allowing water to exist on its surface. अभी आप बोलेंगे यहाँ से उतने लाइट ईयर दूर का पानी हमको किस टेलीस्कोप से पता चला? तो ये टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन या ऑप्टिकल टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी होता है। आपने जो इनका सीवी रमन जी का साइंस डे सेलिब्रेशन होता है ना, नेशनल साइंस डे, उसमें जो सीवी रमन जी ने ढूंढा हुआ रमन इफेक्ट है, उस रमन इफेक्ट की खासियत यही है कि ये रमन इफेक्ट has told whole mankind that everything has got its universal signature the way we got fingerprints। अपने जो फिंगर के ऊपर जो होते हैं, मतलब उसकी तरह हर चीज का एक यूनिवर्सल सिग्नेचर होता है, और वो उस सिग्नेचर को नापने के लिए आप रमन इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी तरीके से आजकल हम एलिमेंट और एलिमेंट का एनालिसिस और फाइंडिंग्स करते हैं। तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना जरूर जान लीजिए कि इसलिए ग्रस कॉन्स्टिलेशन काफी इंपॉर्टेंट माना गया बीच के पीरियड। ग्रस कॉन्स्टिलेशन में डीप स्काई ऑब्जेक्ट की भरमार है। तकरीबन एक आप पकड़ लीजिए कि एक 50-100 गैलेक्सीज इस पर्टिकुलर चीज में है, पर अभी हम उसमें जाएंगे नहीं। बाकी जनरल प्रॉपर्टीज हमने उसकी पढ़ ली। अभी हम दूसरी कॉन्स्टिलेशन कवर करेंगे अगले 10 मिनट में, जिसका नाम है टिक्विना। टिक्विना इज द फेंट कॉन्स्टिलेशन व्हिच लाइज क्लोज टू द साउथ सेलेस्टियल पोल। ऑब्वियसली वो नॉर्थ वालों को, मतलब हमको भी दिखना थोड़ा मुश्किल है। अक्रॉस मच ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर इट इज सर्कमपोलर। सर्कमपोलर वो शब्द का, टर्म का मैंने आपको मीनिंग बताया था। मतलब मैं ये मान के तो जरूर चल सकता हूँ कि आपको यहाँ सर्कमपोलर है टिक्विना कॉन्स्टिलेशन, तो मतलब क्या है ये समझ में जरूर आया हो। फिर भी उसका हाईएस्ट अपीयरेंस जो है वो अराउंड मंथ ऑफ द सितंबर होता है, बट देन दैट इज फॉर द पीपल हु लिव इन द साउथ। मतलब हम सिडनी वालों की, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका, इनकी बात कर सकते हैं। ओके, यहाँ मैंने कंपैरिजन दिखाया, ये टिक्विना है, ऊपर ग्रस है, साइड में इधर आपको एक इंपॉर्टेंट स्टार दिख रहा है फिनिक्स के नीचे वाला, इधर हाइड्रस कॉन्स्टिलेशन है, और पाहो है मयूर। अभी हम चलते हैं उसके रियल पिक्चर में। यहाँ आप कंपेयर करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि, एक ही मिनट मुझे दीजिए, ये जो अल्नेर है वो ये है, सॉरी अल्नेर नहीं, अचर। ओके, यहाँ जो ये टिक्विना है तो ये टिक्विना। फिर यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है, कैसे गायब होगा मालूम नहीं, तो ये हो नहीं रहा है। एक मिनट आगे बस। हम्म, मैं आपको दिखाना चाह रहा था ये चीज। आप यहाँ कुछ देख रहे हैं, ये चीज जो है वो ये है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है टिक्विना कॉन्स्टिलेशन की, जो अभी तक मैंने नहीं देखा, बट दैट इज समथिंग विच इज विजिबल टू सदर्न हेमिस्फीयर। साउथ पोर्शन में, साउथ दक्षिण गोलार्ध में रहने वाले लोगों के लिए, हम उत्तर गोलार्ध में रहने वाले लोगों के लिए जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी M31 विजिबल है नेकेड आई से, वैसे उनके लिए ये स्मॉल मैजेलेनिक क्लाउड और लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड। तो ये क्या है? ये बेसिकली हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से सबसे करीब नेब्यूलाज या क्लाउड्स है जो विजिबल है। तो उनके बारे में हम इस कॉन्स्टिलेशन में पढ़ेंगे। तो हमने अचरनर देखा जो इरिडेनियस मतलब यमुना कॉन्स्टिलेशन का है, और फिर हमने SMC यानी स्मॉल मैजेलेनिक क्लाउड देखा। फिर हमने ये पंछी भी देखा, वो कितना ठीक से आपको दिख रहा है मुझे नहीं मालूम, बट ये टिक्विना दिखाया गया। तो इस पे हम अभी फोकस करेंगे, स्मॉल मैजेलेनिक क्राउड पे। नो, मंगलम जी बोल रहे हैं नहीं दिख रहा है कुछ भी। मंगलम जी माइक ऑन करके बोलिए प्लीज। नहीं सर, वॉइस सही है। वो संकल्प पूछा था इज वॉइस ब्रेकिंग, तो नो लिखे बस।
नहीं नहीं, संकल्प जी का एक छोटा प्रॉब्लम है, बेचारे लेक्चर भी नहीं अटेंड कर पाते, उनका नेटवर्क का कुछ इश्यू चल रहा है। संकल्प दोस्त, आपके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, कांट हेल्प इट, सॉरी। ओके, तो आप जरा वो नहीं, थैंक यू मंगलम जी, आपने ये बताया। तो अभी हम चलते हैं। ओके, तो अभी हम चलते हैं हमारे एंजेलिक क्लाउड के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो हमने ये देख लिया, इस कॉन्स्टिलेशन में जाके हम पहले जान लेते हैं कि इसमें हाँ टिप्स का ऑब्जेक्ट है। तो टिक्विना कॉन्स्टिलेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, आज इसको खत्म करके ही क्लोज करेंगे। यहाँ पे जो भी बीइंग फेंट कॉन्स्टिलेशन, यहाँ जो भी तारे हैं ना, वो बहुत ही मतलब लो मैग्नीट्यूड के हैं, मतलब ज्यादा ही फीबल है, फेंट है। तो ये कॉन्स्टिलेशन हमको दिखने से रहा। 1598 में इसको इंक्लूड या क्रिएट करने का काम कैजर और डी हाउटमैन ने किया। The name of the constellation refers to the colorful South American bird distinguished by its huge beak, जो आपको मैंने चित्र दिखाने की कोशिश की। इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन के डीप स्काई ऑब्जेक्ट में दो बड़े फेमस है। एक है ग्लोबुलर क्लस्टर। मैं हमेशा ग्लोबुलर क्लस्टर और ओपन क्लस्टर की बात करता रहता हूँ, और आपको मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया भी है। आज के लिए इतना जरूरी है कि ये जो ग्लोबुलर क्लस्टर है 47 टुक्यूना एंड देन एसएमसी, दैट इज स्मॉल मैजेलेनिक क्लाउड, जो पार्ट है इस टिकुना कॉन्स्टिलेशन के अलॉटेड एरिया का, उसके बारे में हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके पहले द ब्राइट स्टार अचरनर इज अ नियर नेबरहुड दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिलेशन बट बिलोंग्स टू द लॉन्ग कॉन्स्टिलेशन इरिडेनियस, मराठी में, हिंदी में जिसको यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। नाउ अल्फा टक बोला जाता है, TUC is a giant star over 30 times the width of the sun and its distance of approximately कुछ एक 16-17 लाइट ईयर्स की, या इसी तरीके से कुछ लाइट ईयर्स की दूरी पे हमसे है। ओके, मास इज ओनली अबाउट 3 times that of the sun but surface is little cooler। ओके, ये जो है, ये इसका एक कंपेनियन भी जो है, वो स्टार अप्रोक्सीमेटली 11.5 साल के बाद इसका चक्कर लगा, 11.5 साल में चक्कर लगाता है, समथिंग ऑफ दैट। ओके, बीटा टिक्यूनी जो इधर आपको दिख रहा है, अल्फा देखा हमने, फिर उसी एग्जैक्ट ये हमने अल्फा देखा, ये हम बीटा की अभी बात करेंगे। ओके, तो बीटा की बात ये है कि मे अपीयर लाइक अ सिंगल स्टार बट इवन बीटा सिंगल, यहाँ अपीयरेंस पे सिंगल दिख रहा है, हम यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ डबल दिखाया गया है। छोटे से टेलीस्कोप से भी पता चलता है कि वो डबल है। बोथ ऑफ द स्टार्स आर देमसेल्व्स डबल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे कैस्टर पोल्युक्स नाम के जेमिनी कॉन्स्टिलेशन में जो तारे हैं, उसमें से एक 2 का, एक 6 का, ऐसा कुछ जमावड़ा है, और इस तरीके की सिस्टम एग्जिस्ट करती है। जैसे हमने बोला कि इसमें भी बीटा लगता 2 है, और उन दोनों के भी और एक एक साथी है। तो ऐसे होता रहता है। इफ यू मैनेज टू सेपरेट द टू स्टार्स बीटा 1 एंड बीटा 2 विद अ टेलीस्कोप, देन आप उनको देखेंगे कि भाई एक दूसरे का चक्कर लगाने के लिए मैं वेट करूं, तो इसके पीछे आपको 1,50,000 साल वेट करना पड़ेगा। और इससे भी ज्यादा गड़बड़ वाली चीज है कि अगर आप बीटा 3 को इन दोनों का चक्कर लगाते हुए देखना चाहते हो, तो आपको मिलियन मिलियन ईयर्स वेट करना पड़ेगा। ये कुछ थोड़े अनअंडरस्टैंडेबल हमारे लिए, जो इसमें बहुत ही मैच्योर है कॉन्सेप्ट है, कि लाख, करोड़, अरब, ये सारी चीजें छोटी पड़ जाती है जब हम कॉस्मोस की, यानी हमारे पूरे कायनात की, ब्रह्मांड की बात करते हैं। अभी हम बात करेंगे इसमें छुपे हुए ग्लोबुलर क्लस्टर की, 47 टिकुना की। तो उसमें चलते हैं, दिस इज दैट। ओके, तो इसको करीब से गुरुवेश को चित्र देखना होगा, बट उसके पहले थोड़ी जानकारी। 47 Tucana or 47 Tuk is also designated as a NGC, New General Catalog, item number 104. It is a globular cluster located in constellation Tucana. It's about 4 plus or minus 0.35 kpc. Kpc is kiloparsec distance. Okay, away from Earth and can be seen by naked eye with the apparent magnitude of 4 के आसपास के मैग्नीट्यूड के जो भी चीजें हैं वो देख पाते हैं। तो एक्चुअली वो ऐसा है, ये बड़ा चित्र जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और
अगर उसमें से एक छोटे पोर्शन का मतलब अगर इस चित्र को मैं जूम करके ऐसे बड़ा करूं तो मुझे इस तरीके की कोई चीज दिखेगी। कितने तारे हैं ये है लगभग 1000 तारे। ओके, तो थोड़ा हम इसके बारे में 47 टिकेना के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इट इज डेसिग्नेशन वगैरह हो गया। अभी इस समय मंगलम जी बाहर गए थे, वापस आ गए। ओके, आई एम ऑडिबल, जस्ट put me put in a chat box. Yes, ओके ओके। तो आपको ये चित्र दिखा, अभी हम थोड़ा उसके बारे में जानकारी लेंगे। इट्स 47 टुक इज बेसिकली ग्लोबुलर क्लस्टर। हमने बात की उसके डिटेलिंग की। उसका विजिबल मैग्नीट्यूड इज 4 विच इज वेरी गुड। अपीयर्स अबाउट 40 आर्क मिनट्स। अभी ये मैं आर्क मिनट बोलूंगा, आर्क सेकंड बोलूंगा, ये सब आपको थोड़ा समझ में आए तो अच्छा है। ये 50 आर्क मिनट्स मतलब तकरीबन आप ऐसा पकड़ के चलिए कि चंद्रमा जो एक है ना अपना बड़ा वाला, वो 0.5 डिग्री की हम बात करते हैं ना, मतलब तकरीबन 30 आर्क मिनट्स की। तो ये उससे तकरीबन आपका डबल साइज का है। उसका लोकेशन 18 डिग्री फ्रॉम द साउथ सेलेस्टियल पोल है, तो इट्स नॉट कैटलॉग्ड बाय द यूरोपियन एस्ट्रोनॉमी, मैंने आपको बताया ही था। अभी 47 Tichinae is the second highest brightest globular cluster after Omega Centauri. ओमेगा सेंटोरी भी साउथ में ही लोकेटेड है, सेंटोरस कॉन्स्टिलेशन में, जिसमें मित्र नाम का तारा है जो अपनी सोलर सिस्टम को सबसे करीब यानी 4.36 लाइट ईयर पे है। उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटारी ए एंड बी, और प्रोक्सिमा सेंटारी सी जो उनका छोटा भाई बंधु है वो 4.26 या 25 लाइट ईयर्स पे है। तो ये जो ओमेगा सेंटारी है वो सेंटारस कॉन्स्टिलेशन में है, साउथ में। मेरे घर से थोड़ा स्काई क्लियर रहता है, पर आजकल लाइट के पोल्यूशन के कारण वो भी ठीक से दिख नहीं पाता, नहीं तो पहले हमने ओमेगा सेंटारी अच्छे से देखा है। नाउ विल गो कि कितने तारे इसमें लोकेटेड हैं। टेलीस्कोपिकली रिवील्स दैट अबाउट 10,000 स्टार्स, many appearing within a small dense central core. The cluster may contain intermediate massive black hole. अभी इस पर्टिकुलर चीज का जो साइज है वो कितना है, रेडियस जो है वो 60 लाइट ईयर्स के आसपास है। ओके, एंड एस्टिमेटेड एज जो है इस ग्लोबुलर क्लस्टर का वो 13.06 है। अभी ये एज तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स के आसपास का है। इट इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ मास सेग्रीगेशन इन द ग्लोबुलर क्लस्टर। मतलब इस तरीके से सेग्रीगेशन होने का ये पहला एविडेंस यानी पुरावा था। हर्ट्सप्रंग रसेल डायग्राम एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो लाइफ साइकिल बताती है तारों का, सजेस्ट करता है कि अप्रोक्सीमेटली 13 बिलियन ईयर्स इज इट्स एज विच इज अनयूजुअली ओल्ड। मतलब समझ गए आप, इतना ओल्ड ग्लोबुलर क्लस्टर नॉर्मली नहीं पाया जाता। बट एनीवेज ये सिर्फ जानकारी के लिए था। गलती से जो अपने में मास्टर माइंड है वो टेलीस्कोप के इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। शुरुआत के दौर के ऑब्जर्वेशन में हम सिर्फ जो विजिबल ऑब्जेक्ट उनको ही कोशिश करेंगे। अभी रही लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने उसी का फोटो दिखाया है आपको। अभी हम चलेंगे और इम्पोर्टेंट चीज में, एंड दैट इज दिस स्मॉल मैजेंटिक क्लाउड। अभी ये स्मॉल मैजेंटिक क्लाउड के डिटेल्स सुनना बहुत जरूरी है, बट पहले चित्र ये है। उसी में टुकुना कॉन्स्टिलेशन में अगर मैं साइड बाय साइड इनका फोटो निकालूं तो ये जो ब्लड पोर्शन है दैट इज एसएमसी, और ये जो है वो ग्लोबुलर क्लस्टर फर्स्ट 7 टिकुना है। अगर मैं आगे जाऊं तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर बिकॉज इसमें एलएमसी, वेयर इज दैट एलएमसी, यहाँ देख रहे हैं, ये है आर्म ऑफ द मिल्की वे, ये है एलएमसी लार्ज मैजेंटिक क्लाउड, या एसएमसी स्मॉल मैजेंटिक क्लाउड। ओके, तो इस तरीके से ये दुनिया के अच्छे अच्छे फोटोग्राफर और टेक्नोलॉजी के अवेलेबल होने के कारण घर बैठे हमको इतनी अच्छी अच्छी चीजें देखने मिलती है। तो इसमें जाने के पहले हम इन भाई लोगों में से जो स्मॉल मैजेंटिक क्लाउड है उसकी थोड़ी जानकारी। मैजेंटिक स्मॉल मैजेंटिक क्लाउड इज एक्चुअली कॉल्ड न्यूबेक्युला माइनर, जहां न्यूबेक्युला का मतलब होता है स्मॉल क्लाउड,
इज अ ड्वार्फ गैलेक्सी नियर मिल्की वे, मतलब अपनी गैलेक्सी से कनेक्टेड एक ड्वार्फ इरेगुलर गैलेक्सी है। डायमीटर 7000 लाइट ईयर्स का, कंटेंट सेवरल 100 मिलियन स्टार, एंड टोटल मास जो है इस क्लाउड का वो 7 बिलियन सोलर मासेस जितना है। तो इसके लिए पहले हम जानेंगे कि सूरज का मास कितना है, अगर वक्त मिला तो अगले स्लाइड में। SMC contains central bar structure and astronomers speculate that it was one bar spiral galaxy जो बाद में डिस्टर्ब हो गई। ओके, at a distance of about 2 lakhs light years, SMC is amongst the nearest intergalactic neighbor of the Milky Way galaxy and most distant object visible to the naked eye। आप समझ रहे हैं, ये बात हो रही है सदर्न हेमिस्फीयर वालों के लिए, हमारे लिए नहीं, क्योंकि ये 2 लाख लाइट ईयर पे है। और एंड्रोमेडा गैलेक्सी कितने लाइट ईयर पे है? 22 लाख लाइट ईयर, तकरीबन 22-25 लाख लाइट। मतलब ये बात हो रही है सदर्न हेमिस्फीयर के लोगों को, जिनको एंड्रोमेडा गैलेक्सी दिख नहीं पाती, और हमको हमको दिख पाती है। तो हमारे लिए ये दिख नहीं पा रहे, बट कभी साउथ की तरफ चक्कर मारेंगे तो हमको ये दोनों SMC और LMC आराम से दिख पाएंगे। ओके, तो इसकी ऑब्जर्वेशनल हिस्ट्री बड़ी लंबी चौड़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली सदर्न साइड में भले ही अरेबियन, यूरोपियन, इंडियन लोगों ने ज्यादा गौर न किया हो, बट बाकी लोगों ने जो साउथ साइड में रहते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियंस है, न्यूजीलैंड के लोग हैं, इन्होंने इस चीज को बहुत पहले से नोट किया है। इवन फ्यू अरेबियंस हैव आल्सो, जो एक्सपीडिशंस पे निकलते थे, इन्होंने इस तारों का नाम या इन क्लाउड्स का नाम अलबक्र या व्हाइट ऑक्स के तरीके से रखा था। तो ये अल वगैरह जो है, ये डेसिग्नेशन कम फ्रॉम द अरेबियन सिविलाइजेशन। तो इन बिटवीन 1834 to 1838, John Frederick William Herschel made observations of the southern skies with his 14-inch reflector from the Royal Observatory. While observing this particular nebula minor, he described it as a clouds of light with an oval shape and bright center. Within the area of this cloud, a catalog concentration of various nebulae and clusters. इसी तरीके से एक बहुत ही फेमस लेडी है, उनका जिक्र मैंने क्यों नहीं किया है, उनका नाम था हाँ, हेनरीटा लेविक। ये लेडी ने दिन रात एक करके कुछ ऐसे तारे ढूंढे जिनकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है, और उन्हीं को वेरिएबल स्टार बोला जाता है। और इस वेरिएबल स्टार से आज की डेट पे डिस्टेंस तारों का, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का बहुत अच्छे से और सटीकता से डिस्टेंस नापा जाता है। इस सेफिड वेरिएबल स्टार्स आर बेसिकली नेम्ड आफ्टर द प्रोटोटाइप स्टार डेल्टा सेफी, which has shown definite relationship between the variable period and its luminosity। तो ये सारी चीजें जो है, ये इंपॉर्टेंट पीरियड ल्यूमिनोसिटी का जो रिलेशन है, वो पर्टिकुलर चीज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस टू द एसेंस। स्मॉल मेजेलरिक क्लाउड के टर्म्स में ये सब होता है, और बाद में इनको स्टैंडर्ड कैंडल बोला गया। मतलब क्या बोला गया, ये जब हम स्टार्स के स्ट्रक्चर इवोल्यूशन की बात करेंगे तो उसमें जरूर जाएंगे। आज ऑलरेडी हम 10 बजे का सिलसिला क्रॉस कर चुके हैं, तो आगे बहुत कुछ चीजें हैं, बट उसमें जाएंगे नहीं, मैं यही रुकूंगा। बट अगली बार आप जो अब तक सिलेबस हुआ वो सब वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है, तो आप उनका स्टडी करिए, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा। मार्क्स की जहां तक चिंता मत करिए आप ज्यादा। और रही बात, भिस्से मैडम ने एक सवाल पूछा था कि सर ये जो आपने, एक मिनट, बहुत सारे सवाल है, क्लास टाइम पे होगा क्या? तो क्लास टाइम पे ही रखने की कोशिश करेंगे, बट मोस्टली नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर उससे क्लास मिस हो जाएगा ना। तो हफ्ते में कभी तो करवा लेंगे, और क्लास के टाइम पे क्लास ही होगा। ओके, तो वो कब क्या, वो सब आपके सहूलियत के हिसाब से ही हम करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इस अल्नेर पार्ट ऑफ द समर ट्रायंगल सर? श्लोक नहीं भाई, अल्नेर नहीं है ना, अल्टेर है। अल्टेर अलग चीज है ना भाई, वो उस जो है अकीला कॉन्स्टिलेशन, मतलब गरुड़ का हिस्सा है। यहाँ हम बक यानी क्रेन की बात कर रहे हैं। वन लाइटर इज दिस, हाँ 1 लाइट ईयर प्रद्युम्न कैलकुलेट कर रहा है शायद। और फिर बाद में कोई सवाल है क्या? नहीं, सवाल खत्म हो गए। तो आप सबसे मैं विदा लेना चाहूंगा।
ये सारी चीजों में अगर आपको मैं कुछ न समझे इस तरीके से बता रहा हूँ तो मुझे प्लीज अपडेट करते रहिए, बिकॉज आई डोंट नो रियली कि आपको ये जो लेक्चरिंग चल रहा है वो एग्जैक्टली कैसे लग रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आता है। बट आई विल बी वेरी हैप्पी टू कीप इम्प्रूविंग। आई डोंट नो, बाहर आ गया। आई विल बी वेरी हैप्पी टू कीप इम्प्रूविंग। तो मैंने स्टॉप शेयरिंग कर दिया है। आपके कुछ डाउट्स है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। सॉरी फॉर कंटिन्यूइंग लिटिल लेट। ओके, टाटा बाय बाय। थैंक यू, प्लीज लीव द क्लास। बाय 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 आयुष। चलिए बाय 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 बाय। चलो बाय बाय।